Yes. How is everybody? Good. Happy Ram Navami. राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं. So how was Navratri? Nice, no? Navratris are always nice. Sure. Okay. Can we have everybody's videos on, please? Hmm. I think a very good day to talk about six enemies of our consciousness. We have Ramji to destroy the inner enemies, which is the ego and few other things. So मस्त दिन है आज के टॉपिक के. Six enemies of our consciousness. Mind is your biggest friend or your worst enemy. This itself explains, right? So हम धर्मा सीरीज में आगे बढ़ते बढ़ते आज इस पे आए हैं that what are the six enemies of our consciousness. So we understood the disciplines, then we understood how mind functions, then how intellect functions, how memory functions, how and what all are the flavors of ego. And then we covered what is our true nature. Self kya hai, right? So now having understood what is our true nature, which is of Satchidananda Rupoham, Shivoham, Shivoham. Now, what is coming in the way of for us to experience our true nature? Then there are these six enemies, right? Everybody with me on this? Videos on kar lo na, please. आपको क्या लगता है? Who is our enemy? That enemy is somewhere out there, some person, some situation. What do you think? ऐसा ज्ञान सुना हुआ नहीं बोलना, आपके एक्सपीरियंस में हु डू यू स्टिल ट्रीट एज योर एनिमी? डू यू हैव एनिमीज और इज योर माइंड मेकिंग itself to be your own enemy? चलो थोड़ा सा इंटरैक्टिव. चैट ऑन है. हम स्व अध्याय के तरफ आगे बढ़ते जा रहे. सो इंट्रोस्पेक्शन हैज टू बी इंक्लूडेड, नहीं? See, knowledge remains information until it does not become your self experience. जब तक वो स्वानुभव नहीं हो जाता तब तक तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही है ना. एंड वो स्वानुभव बनने के लिए स्व अध्याय जरूरी है, राइट? व्हाट इज स्व अध्याय? सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग इन योर ओन माइंड and what role are we playing in either making our life a celebration or making our life a misery. Now, life is not a misery. These enemies end up making our life a misery and keeps us away from experiencing the celebration that life is here to offer. Okay, our mood is our enemy, somebody's written. Our own interpretation of people and situations and even ourselves. Yes, lethargy, definitely. Lobe, definitely. You know why all this? और भी जो लोग लिखेंगे. Anything, if I have to वो डेफिनेशन वाला जो करते थे ना पहले, इफ आई हैव टू डिफाइन व्हाट इज योर एनिमी, हु इज योर एनिमी, समथिंग दैट कीप्स यू अवे फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग योर स्वभाव इज आवर एनिमी. कैन वी से दिस? थोड़ा सा हार्श वर्ड है ये एनिमी, बट वो इंटेंसिटी जगाने के लिए कई बार इंटेंस इवेंट्स या इंटेंस शब्दों से ना वो स्लम्बर में से बाहर निकल के थोड़ा सा फास्ट हो जाता है.
जैसे ही हम कहें कि हमारी लेथार्जी हमारी एनिमी है, तो हम दुश्मन को तो थोड़ी ना हमारे ऊपर जीतने देंगे, नहीं. Lethargy is not favorable for you. Sometimes is not enough an intensity. Immediately when you label it as an enemy, the intensity changes. This is what I feel. Yes, everybody agree to this? इसीलिए शास्त्रों में भी ना इसको षडरिपु कहा है. 6 दुश्मन, चेतना के 6 दुश्मन. राइट. और भी किसी ने लिखा है चिंता करना. हाँ, सी चिंता करना इज चिंता करना इन अलाइनमेंट विथ योर ट्रू नेचर. ट्रू नेचर मीन्स क्या? दिव्यता क्या है? सच्चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवोहम. रिमेंबर, मम धर्म. यस. नाउ ओशन इज सच्चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवोहम. तो कैन वेव भी चिंता करना? ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हम सब अगर वेव है, and collective consciousness is the ocean. So if ocean, which is equal to collective consciousness, is Satchidananda Rupoham Shivoham Shivoham, then हम क्या है? So हम, I am also that. So anything that keeps you away from Swabhava is your enemy. Swabhava is not going anywhere. It is only getting masked by some things. And what it is getting masked by, we are calling it our enemies. And when we say we don't want to indulge, what are we saying? We don't want to indulge in allowing these mukhotas to become our own reality. Mukhota hai, I am not good enough. Is it real? Is it true? Is that the truth? No. Then who is allowing that mukhota to stay? We ourselves. So we are saying don't indulge in believing that you are weak. Don't indulge in believing that you are small. Don't indulge in victim. Don't indulge in lethargies. Don't indulge in doership. Don't indulge in वो पूरा षडरिपु का लिस्ट. क्लियर? सो फार सो गुड. कल परसों ना एक किसी कहीं से रील आया था. somebody's. It is very difficult. It said it is very difficult to be the ego. But it is very, very simple to be the self. Makes sense, no? नेचुरल रहना सिंपल है कि सुपीरियर, इंफीरियर, गिल्टी, विक्टिम, एंग्री, डिफेंसिव, हाई हेडेड, एरोगेंट, ये सब रहना सिंपल है कि नेचुरल रहना सिंपल है? डू यू लाइक योर सेल्फ मोर व्हेन यू आर हैप्पी, नेचुरल, लाइट, फ्लोइंग, और यू लाइक योर सेल्फ मोर वरिड, हाई हेडेड, एरोगेंट? ऑब्वियसली. इसीलिए बच्चों के साथ मजा आता है ना. क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, मीन्स नेचुरल बन जाते हैं. So anything that keeps us away from this naturalness is our enemy. Simple. So गुरुदेव हमारी बिगनिंग, मॉर्निंग बिगनिंग किससे शुरू करवाते? सो हम मीन्स आई एम दैट. So at all the levels, at 7 levels, we are having this reminder. We are having this. Just a second. So anything that stops us from being ourselves is what? Our enemy. Such a simple definition, no?
है ना? So when you're not smiling, what is taking over? Some worry. When you're not smiling, suppose, what are you thinking? मुझे ऐसा बोल दिया, या मैं दुखी हो गई, या मैं दुखी हो गया. इज इट नेचुरल? मुझे तो लगता है ये चेक लगाओ. सुबह सुबह हम इसी से शुरू करते हैं. गुरुदेव एट एवरी लेवल इन सुदर्शन क्रिया इज वर्किंग ऑन दिस, दैट यू कम बैक टू योर ट्रू नेचर. सुदर्शन ना, बता ही नहीं सकते कि सुबह की साधना का क्या महत्व है. अपने अभावों और प्रभावों से पीड़ित मन भूल जाता है, इसीलिए सुबह इससे शुरू करो. तो दो चीज हो रही है. पहले के जो सब इकट्ठा किए हुए हैं उससे तो मुक्ति मिल ही रही है, प्लस रिमाइंडर जा रहा है. द मेमोरी ऑफ स्वभावा इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर विद एवरी डे ऑफ प्रैक्टिस. It is like a kavach that is getting formed. Please understand, you are invoking the presence of your master through your sadhana in your life. Every day you sit for your daily practices. Please do it with a lot of honor. Please do it with a lot of sincerity. नहीं तो कितना भी हम होल्ड कर सकते हैं knowledge sessions, but till it doesn't come into your own experience, not much will change. And the qualification to invite these experiences to your life is your time with your master, which is that 1.5 hour of sadhana. Then this satsang is even applicable, and you have to do some seva to increase your patrata. नहीं तो चम्मच लेके खड़े रहोगे, चम्मच जितना ही पाओगे. पात्रता बढ़ाने का माध्यम है सेवा. अब डिसाइड करो. बारिश हो रही है, बारिश नहीं, सा pouring heavily, and you are standing with a spoon. Really, really, really special, chosen, selected ones we are, who we've got an opportunity. I don't know क्या पहले के पुण्य होंगे कि हम अभी इस मार्ग पे है, ये पाथ मिला है, ये ज्ञान मिला है, ये प्रोसेसेस मिले हैं. एंड आवर मास्टर इज a living embodiment. We have a living master. It is really not a joke. मेरा वापस वो वाला ट्रैक शुरू हो जाएगा. गुरु जी की बातें 10 घंटे भी नॉन स्टॉप कर सकते हैं. बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द 6 एनिमीज. बट उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या है? वही इनफ है. चलो दो चार चीजें नहीं समझी उनको. नो देर आर, एक ऋषि जी का एक बहुत ब्यूटीफुल वीडियो है. आई विल फाइंड आउट एंड शेयर टुडे. I think the title of the video is Love and Laziness Don't Go Together. Sometimes you have to identify what is not good for you. But after having done that a little bit, what is more easier? To just invoke what you should be. Automatically, other things will drop. And other things means क्या? ईगो के जो फ्लेवर्स है उनको जैसे ही छोड़ोगे, नेचुरली प्रेम है ही. सो अपहोल्ड लव and it will save you from the 6 enemies. That is the point. And to uphold love, what more you need than just bringing this to reminder how special we are? We have His presence. We have this path. We have all the techniques. And we have this beautiful opportunity to serve. तो 6 enemies क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर. काम, लस्ट. क्रोध,
स्टार्ट्स विथ इरिटेशन, एंड्स अप टिल हेट्रेड। वो सारे जो फ्लेवर्स है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, हेट्रेड, डिससेटिस्फैक्शन, ये सारा संस्कृत के एक वर्ड क्रोध। लोभ, ये दिल मांगे मोर। तृप्ति ही नहीं है, एंड इट लोभ इज नॉट ओनली मनी, इट इज डिजायर्स। तृप्ति ही नहीं हो रही, अतृप्त अतृप्त अतृप्त। तो कैसे कंटेंट चेतना, जो अबंडेंस फील करके एक्सपैंडेड, फुलफिल्ड fullness of your being, how will we experience? With discontentment. That's why it is an enemy. Then moh, attachment. वीडियो में समझेंगे how it is an enemy. Then काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद means ego. 12 flavors, we've already covered that. And matsar, jealousy, feeling lack. Somebody else has something which I don't have. So again, it is keeping you away from fullness of your being. समझा? Clear? Simple? Simple, no? इतना ही simple to get rid of it. I feel bhakti is the way. भक्ति की शक्ति, एंड तृप्त होके ही मुक्त हो जाओगे। ये गुरुदेव ने कहा था लास्ट ईयर हनुमान जयंती पे। तृप्ति से ही मुक्ति है और भक्ति से ही शक्ति है। Shall we watch the video? Yes, great. So let us watch the video. जो तुम्हारे रिवर्स गेयर्स हैं, ये 6 हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। वासना डेंजरस है, एक्सट्रीमली डेंजरस, बच के रहना। क्रोध तुम्हें है ना प्रेम नहीं जगने देगा, समझ रहे हो? क्रोध से तुम्हारी चेतना कड़ी होती है, हार्ड होती है, ड्राई होने लगी होगी। उसमें फिर भक्ति या प्रेम या मृदुता, माधुर्य कम होने लगेगा। यस। लोभ, बाहर की दुनिया से सुख की चाह, सुन रहे हो मेरी बात? मोह भी बाहर की दुनिया से सुख की चाह। लोभ और मोह कितने सिमिलर है देखो, सुन रहे हो? वस्तु या परिस्थिति से सुख चाहना ये लोभ है, और व्यक्ति से सुख की मांग ये मोह है। दोनों भ्रम ही है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह। लोभ तुम गौर से देखना, लोभ माने क्या? चीजों से सुख चाहिए, या परिस्थिति ऐसी मिलने पर सुख मिलेगा ऐसा लगता है, लोभ हो गया। मोह, व्यक्ति से सुख चाहिए, ये नहीं रहेगा तो दुख होगा ऐसा लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्ट कॉन्शियसनेस, विक्टिम कॉन्शियसनेस, मतलब ईगो है, मैंपन, आईनेस, ईगो इज मद। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फेक है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। सुन रहे? गिल्ट कॉन्शियसनेस अपने आप को ब्लेम करता रहने वाला ईगो है। विक्टिम कॉन्शियसनेस किसी और को ब्लेम करता है, ईगो ही है। 5वां फ्लेवर सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी, गिल्ट, विक्टिम। 5वां फ्लेवर डिफेंसिव कॉन्शियसनेस, ईगो ही है। कोई तुम्हें तुम्हारी गड़बड़ करने वाली वृत्ति दिखाना चाहे और तुम अपना बचाव करने लगते हो, जस्टिफाई करने लगते हो, डिफेंसिव कॉन्शियसनेस है।
स्टूपिड है। डिफेंसिव कॉन्शियसनेस में ईगो क्या कह रहा है? आई एम नॉट रॉन्ग। रॉन्ग राइट की बात ही नहीं है। मैंने कोई गड़बड़ वाली टेंडेंसी घुसी हुई होगी, किसी को तो बताना पड़ेगा तुम्हें। कोई रिस्क लेकर बता रहा है तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए उनको। लेकिन डिफेंसिव कॉन्शियसनेस वाला ईगो घुसा हुआ हो, तुम थैंक यू नहीं कह सकते, तुम अपने आप को बचाव करने लगते हो। समझ रहे हो क्या? डिफेंसिव कॉन्शियसनेस। छठा फ्लेवर ईगो का, अलूफ कॉन्शियसनेस। किसी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे माय डियर। अलूफनेस समझते हो? समझे? बिलोंगिंगनेस, प्रेम, उत्साह, आनंद, जिम्मेदारी, इतने सुंदर सुंदर भाव है। उन सभी भावों को तोड़ने वाला भाव है ये अलूफनेस, है ईगो ही। अलूफनेस समझते हो मेरी बात? ये ईगो चढ़ा हुआ होगा, इतने सुंदर सुंदर लोग होंगे आसपास, लेकिन किसी से आत्मीयता बना ही नहीं पाओगे, अलूफ हो गए, अकेले हो गए। छठा फ्लेवर है ईगो का। सातवां फ्लेवर मैं कहता हूं अटैकिंग कॉन्शियसनेस। कोई बहुत इंटिमिडेटी होगा, ईगो चढ़ा हुआ है, कनेक्टेड है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से। सुन रहे? अच्छा, एंड आठवां फ्लेवर कंप्लेनिंग कॉन्शियसनेस। पता है कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई है, सब कुछ अच्छा है लेकिन करके लिस्ट बनाने लगेगी। कंप्लेनिंग कॉन्शियसनेस वाला ईगो होगा ना, बेस्ट से बेस्ट माहौल में भी कंप्लेन करने के लिए कुछ ढूंढ लेगा, किसी को रॉन्ग बोलेगा, तब राइट फील करेगा। सुन रहे हो मेरी बात? कुछ लोगों को शिकायत करने की इतनी आदत पड़ी हुई है, बेस्ट से बेस्ट एटमॉस्फेयर में सब कुछ अच्छा हो। अब हर चीज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते ही है कि नहीं? लेकिन कंप्लेनिंग कॉन्शियसनेस वाला ईगो हमेशा डिसएडवांटेज को ढूंढता है। क्या तकलीफ हुई, क्या गड़बड़ हुई, क्या रॉन्ग हुआ, उसको ढूंढ के किसी को रॉन्ग करके अपने आप को राइट प्रूव करने का प्रयत्न करता रहेगा। I'll tell you, मेंटल डिसीज है ये, रोग है। I'm telling you this। जीवन से इतना मिल रहा है हमें, लेकिन सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि शिकायत करते रहने की आदत है। पीड़ित बेचारे, शिकायत करने वाले कंप्लेनिंग ईगो से पीड़ित हैं। सुन रहे हो? इन 8 फ्लेवर वाला जो ईगो है, इसको मद कहते हैं। मैं फिर से एक बार लिस्ट दे रहा हूं तुम्हें। तुम्हारे जीवन को नुकसान करने वाले 6 जो फैक्टर्स हैं, समझ लो उसको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मद के 8 फ्लेवर्स: सुपीरियरिटी, इंफीरियरिटी, गिल्ट, विक्टिम, डिफेंस, अलूफ, अटैक, कंप्लेंट। लिस्ट क्लियर? ये मद है। और फिर मत्सर यानी जेलसी। किसी के अंदर कुछ अच्छा देखा और पेट में गुड़गुड़ किया। सुन रहे हो? किसी की ताकत देखी, स्ट्रेंथ देखी, किसी का कुछ सक्सेस देखा, किसी का कुछ बहुत पॉजिटिव पॉइंट देखा और तुम में वो ना होने का भाव जगा, ये मत्सर है। डायरेक्टली अभाव जगाने वाला मत्सर है। अच्छा, तुम गौर से देखोगे, सबके साथ नहीं होगा तुम्हें, कुछ ही लोग होंगे ऐसे। यस। अच्छा, उसी व्यक्ति के अंदर सभी पॉजिटिव्स देख के नहीं मत्सर जगेगा। जहां तुम्हें अपने अंदर कमी का एहसास होगा, किसी के अंदर की कुछ अच्छा ही देख के, वहां मत्सर जगेगा। रिपु कहते हैं इनको। रिपु यानी दुश्मन। तुम्हारी चेतना के, सत, चित और आनंद वाली चेतना के 6 दुश्मन है: काम वासना, क्रोध, लोभ,
मोह, मद और मत्सर। इन 6 के 6 अगर तुम थोड़े से समझते जाओगे, अरे लिस्निंग, ये 6 के 6 अलग अलग डालियां हैं, लेकिन बीज तो एक ही है, अभाव का। काम वासना तृप्ति की कमी से आएगी। मुझे नहीं पता मैं और कैसे समझाऊं इसको। क्रोध अतृप्ति से जगह नहीं जगने वाला है। अंदर अभाव है तो कुछ पाने की तीव्र इच्छा है, और वो ना मिलने पर क्रोध है। क्रोध के साथ, चिंता के साथ हमेशा कोई न कोई इच्छा होगी। वो बहुत बुरा ये नहीं डिस्क्राइब कर रहा हूं। कामात क्रोधो भी जायते कह रहे हैं। काम में से उत्पन्न होने वाला ये क्रोध है। काम यानी इच्छाएं। फिर कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इतना स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब किया हुआ है भगवद गीता में। क्रोध से सम्मोहन हो जाता है। सम्मोहन माने एक जैसे mesmerized by anger, you will lose sensitiveness about who you are getting angry at, who that person means to you, what have they done to your life, how much have they contributed. Everything you will forget. What damage they can do to your life, everything you will forget. क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धि का नाश, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, तुम्हारा चित्त गिर जाएगा उससे। क्रोध करने के बाद बार बार तुम थकते रहोगे। सुन रहे हो मेरी बात? और क्रोध को कितना सुंदरता से माने कितना डिटेल में वर्णन किया हुआ है। तुम ज्यादा हो रहा है क्या? गौर से देखो ना, तो तृप्त भाव से इच्छा जगी, इच्छा पूरी नहीं तो क्रोध, और क्रोध में भी पहले अंदर टाइटनेस जगा होगा, फिर टाइटनेस से और इंटेंसिफाई होते होते शिकायत बनी होगी। वहां तुमने अगर उसको छोड़ नहीं दिया होगा तो उससे गुस्सा बना होगा, गुस्से को भी त्यागा नहीं तो उससे नफरत तक जा सकता है। तो पूरा रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस फ्रॉम टाइटनेस टू कंप्लेंट टू एंगर टू हेट्रेड, ऑल दैट इज डिस्क्राइब्ड इन जस्ट वन वर्ड, क्रोध। आर यू लिसनिंग? प्लीज वेक अप। Every single time you are going from tightness to nafrat, you are strengthening the habit of क्रोध again and again. क्रोध से उस क्षण का तो नुकसान हुआ ही, क्रोध की आदत और गहरी होती गई। Are you listening? क्योंकि the way the consciousness is designed, तुम जो कार्य बार बार करोगे उसकी आदत बनती जाएगी। वैसे ही तुम बार बार कोई बनी हुई आदत को छोड़ते जाओगे तो वो छूट भी जाएगी। ऐसी अद्भुत चेतना है हमारी। Yeah. So next week we will start working on how to invoke the positive flavors and release all that is not favorable. ठीक है? तो ये वीक में एक्सरसाइज क्या, अपना लिस्ट बना लो षड-रिपु का। Where are we standing in षड-रिपु? Score yourself 0 to -10. और ये सच में रेगुलरली करना चाहिए एक्सरसाइज, जस्ट इंट्रोस्पेक्शन।
क्लियर है ना सबके कमिटमेंट्स, सबके संकल्प? तो गुरु पूजा करें। नेक्स्ट गुरु पूजा। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मच्छ्रीगुरुपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचिः वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषद् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हारार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वात्मरूपिणं
गगनसदृशम् तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। Jai Gurudev. See you on next Sunday. All the best for the week. Jai Gurudev.